Thanks. Yeah. So a warm welcome, and we are taking up part two of the same episode, and we are going with the next case study. The farmer unions in one of the states has called for mass protest owing to a large number of arrears and the duties not being paid by private sugar factories for the last 2 years. ऐसा हमने मध्य प्रदेश में तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा है. On the day of mass protests, farmers turned up in huge numbers, and at several places, the protest turned violent. There were instances of stone pelting and vehicle burning. The police were not able to control the violent protesters at some places and had to resort to lathi charge. But one of the places, police resorted to firing also, in which 4 farmers were killed. This aggravated the situation further badly, as farmers at other places also resorted to violence to protest the police action. Looking at the intensity of the situation, under opposition pressure, one of the ministers of the state gave the statement that farmer did not die due to police farming, but there were some antisocial elements among the protesters who died in order to create unrest in the state. Now, this statement of the minister, instead of calming the protesters, further angered them, as some of the eyewitnesses testified to news channels about the death being the results of the police firing. All this further projected government in the bad light, and the police action has come under severe criticism by various sections of intelligentsia. Public sentiment has started to sway in favor of protesting farmers. There was a huge pressure on government to diffuse tension, address farmers' grievances, and take action against the police personnel who involved in firing at the protesters, since the protesters have started blocking all major state highways, which has crippled the day-to-day routine of the people of the state. Further, there is danger that situation may get out of control anytime. Suppose you are the DM where the incident had taken place. You have to address the press conference. What will be your statement to media if it seeks clarification on whether people died in the police firing as stated by the state minister? What are the ethical issues involved in the case? What steps will you take to tackle the post firing situation effectively? बहुत अच्छा केस स्टडी है, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप सोच सके, जान सके और अपने आप को इवैल्यूएट कर सके. What about the first one? What about the third one of yours, Mansi? I have not written. So, being the DM, my briefings to the media to clarify on deaths and police firing. The administration has taken note of cross-firing incident in which 4 individuals in the farmer side has been noticed to have died, and policemen also have got severe injuries. Dead bodies have been sent to government hospital for post-mortem and panchanama. Policemen injured are also admitted, and MLC is duly registered. Okay. A special SIT will be constituted, headed by retired judge of High Court on this matter. And on the basis of forensic report and post-mortem report, the guilty will be booked and will be subject to judicial action. In the meantime, it is requested by the administration to all important stakeholders to not take law in their own hands, present their demand via peaceful method, and don't create traffic congestions on road and railways. Cooperate to identify social miscreants and taking identity of farmers, those who are taking identity of farmers, and creating a violent atmosphere. कोशिश अच्छी है, पॉइंट्स तो जनरल आ गए, लेकिन ये प्रीचिंग हो गई, तो इसको और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से हम अगर करते तो शायद स्कोर थोड़ा और ज्यादा हो सकता है. एथिकल वैल्यूज है पीसफुल प्रोटेस्ट वर्सेस एजिटेशन, राइट टू प्रोटेस्ट फॉर फार्मर्स वर्सेस राइट टू कम्यूट, राइट टू एजिटेट वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पुलिस धरना, नॉट धरना, communal violence in the. So, okay, couple of points are appreciated here. They are on track. Let's see. इससे better अगर होगा तो फिर obviously it falls back. Steps to tackle post firing. Call RPF, CRPF battalion to cooperate with police. इतनी बड़ी बड़ी बटालियन बुला के आप पुलिस से क्या कॉपरेट कराएंगे भाई? ये तो मतलब वहां तो दंगे और बवाल हो जाएंगे. तो दिस इज नॉट अ आइडिया. आप कह रहे हैं कॉल आरपीएफ, रैपिड पुलिस फोर्स बुला रहे हैं. रैपिड दंगे हो गए हैं क्या? फार्मर्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप सीआरपीएफ और आरपीएफ बुलाकर क्या करना चाहते हैं?
ट्रैक्टर पीसफुल चल नहीं है जाए। ना सर, हाँ, पीसफुल थोड़ी है प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट तो पीसफुल ही था, पुलिस ने फायरिंग करी और मिनिस्टर ने कह दिया मिसक्रिएंट थे, लेकिन मिसक्रिएंट थे थोड़ी ना, वो तो मिनिस्टर ने बचने के लिए बोल दिया था। बोलिए आशु। सर, जो प्रोटेस्ट था उसमें राइटिंग भी हुआ था और फिर व्हीकल्स जलाया गया था। वो भी एक नहीं पार्ट ऑफ नहीं, द वो प्रोटेस्ट था। तो ठीक है, उसके बाद पुलिस लेकिन वो फायरिंग हुआ था। हाँ पुलिस फायरिंग उसके बाद हुआ, लेकिन वो तो देखो अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, लेकिन उसको रोका रोका जाएगा ना उसको, वो तो मतलब इट इज नॉट ए, हम कह सकते हैं इट इज नॉट देयर इंटेंशन, फार्मर्स का इंटेंशन नहीं था। यूज ऑफ सेक्शन 144 भी लगा देंगे आप, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आप रोक देंगे, सारे के सारे स्टेट मतलब एक्ट के स्टेप ऐसे हैं जो बहुत हार्श हैं, जो फार्मर्स को और गुस्सा दिलाएंगे। अच्छा, प्रोवाइड फार्मर्स ए सुटेबल प्लेस टू प्रोटेस्ट, ये क्या बात हुई? हिंदुस्तान में फार्मर के लिए तो पूरी जगह अपनी है, तो ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे तो। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए आप, फार्मर प्रोटेस्ट पीछे के देखिए, और आप फिर आपको कोई सूटेबल मेजर बताना है। अश्योर फार्मर्स ऑफ द सर ग्रीवेंसेस। हाँ। सर जैसे कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट जो अभी रिसेंटली हुआ, उससे बड़ा तो कोई फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जांपल इंडिया में नहीं है। तो वो सारे मेजर सर लिए गए, तो वही मैंने मतलब लिखे। ऐसा सर, वो तो कंटेनर भी लेके ब्लॉकेट किया उन्होंने। अरे कहाँ यार, आप करनाल का एग्जांपल ले लो, तो वो तो मिनी सेक्रेटरीट तक को उन्होंने बंद कर दिया था, ये तो उसका बहुत छोटा रूप है। आप इसको और स्मार्टली टैकल करके आप इसको खत्म करो, आप उसको बढ़ा क्यों रहे हो? आप आरपीएफ बुला रहे हो, आपने थैंक गॉड एयर ड्रॉपिंग नहीं करवाई, कि भाई मैंने एयर क्राफ्ट से जो है ना कमांडो खुदवा दिए हैं, वह वो रह गया था। वही मैं ढूंढ रहा था कि कमांडो तो नहीं आ गए, कमांडो ड्रोन, मतलब ये क्या है? We have to understand. I agree with you, but then please understand. Tomorrow you are going to have a genuine, a real situation like this. तो हमें रियल के लिए तैयार हो रहे हैं हम, तो हम नहीं कर सकते ऐसा। और वट एवर रिजल्ट ऑफ पोस्टमार्टम, वट एवर रिजल्ट, देखिए आप मतलब कितना इनसेंसिटिव लाइन है। वट एवर रिजल्ट, पोस्टमार्टम की बात हो रही है, जो मर गए हैं वो बेचारे शहीद जो हुए हैं, या जो जिनकी दिवंगत शरीर है, वो खुद नहीं बोल सकते, आपकी भाषा क्या कह रही है? वट एवर रिजल्ट ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कितना इनसेंसिटिव। फार्मर कुछ और करें ना करें, लेकिन आपकी पिटाई जरूर कर देंगे पकड़ के जहां मिल गए, क्योंकि ऐसा नहीं, आपको फील करके लिखना है भाई। मजाक हो रहा है, ये तो मजाक नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ जोक। विल ब्रिंग स्टेट गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट मीडिया टू कोऑपरेट, नहीं यार, ये मतलब आप किताबी मत लेके आओ, आप खुद सोचो कि मैं वहां पर हूं, फिर क्या होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट, तो देखना मजा आएगा आपको लिखने में। अब देखते हैं यहाँ क्या है। मास मीडिया, कम्यूटर्स इन हाईवे, पब्लिक, मिनिस्टर, डीएम, 4 फार्मर शहीद हो चुके हैं, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मर यूनियन, शुगर फैक्ट्री। अब इसमें भी इन्होंने खैर ऑपोजिशन लीडर एक आध लेके भी ला सकते थे पार्टीज, पर वही है कहां से लाओगे? पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन पार्टी। राइट टू प्रोटेस्ट इज गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19, बट इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल सही शुरुआत की। तो केस स्टडी क्या कहती है? केस स्टडी दर्शाती है इस चीज को ना। केस स्टडी कौन सा डिलेमा दिखा रही है? एथिकल डिलेमा, कि फार्मर्स को अपना राइट चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया, उसकी वजह से अनटूवर्ड सिचुएशन बन गई। चाहते थोड़ी ना थे फार्मर ऐसा। अब स्टोन पेल्टिंग हुई, आर्सन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, वो रोकना पड़ेगा, इज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन हाई हैंडेडनेस बाय ऑफिशियल्स इज नॉट अ वे अहेड। देयर शुड बी अटमोस्ट सेंसिटिविटी एंड सिंसियरिटी। अब डीएम साहब क्या करेंगे, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। द मैटर ऑफ फायरिंग एंड डेथ ऑफ 4 फार्मर्स इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, नहीं, सबसे पहले बोलना चाहिए इट इज वेरी सैड एंड रिग्रेटेड। बहुत दुख है इस बात का कि ऐसा हुआ, सबसे पहले हमें दुख है बहुत ज्यादा, पहले ये आना चाहिए था। किसी को दुख ही नहीं है। एथिक्स का आंसर हो रहा है, दुख नहीं आ रहा है। सब यहां पर जो है कमांडो बनने में लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन, कौन हो भाई, सिंघम हो? मीन वाइल आई एम रिक्वेस्टिंग, हैंड्स फोल्डेड, अच्छा विजुलाइज भी कर लिया इन्होंने कि मैंने हाथ फोल्ड किए हुए। द फार्मर लीडर्स एंड प्रोटेस्टर्स टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। अरे वो पीस एंड हार्मनी रखते हैं, उनके मुद्दे को सॉल्व करवाओ ना। आप बोलो मिनिस्टर आगे करोगे आप, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को बोलो, चीफ मिनिस्टर आपको डिप्यूट कर रहे हैं, बोलो चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट, मैं उनकी बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको सोल्यूशन होगा। कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? वी द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज रेडी टू लिसन टू द डिमांड। अच्छा, लिसन करने के लिए भी आप एहसान कर रहे हैं, कान में आपके गर्म तेल डाल दिया जाएगा। पुट फॉरवर्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर, strict action will be taken against mishap after investigation. Meanwhile, a compensation fund had been initiated in the name of 4 farmers.
अबे सिचुएशन कहाँ गई, जो मुद्दा था वो भी तो लाओ, जिसके कारण ये हुआ वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, वो भी आना चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 19, मजाक लगा रखा है आपने कि कोई मर गया, ठीक है, वट एवर इज द रिजल्ट ऑफ द पोस्टमार्टम वी विल सी टू इट, हाथ में सिगार और ले लो बस। राइट टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 19, नॉट गेटिंग थिंग्स डन, ग्रीड ऑफ द कंपनी वर्सेस ड्यूज पेड ऑफ वर्सेस ड्यूज, बिल्कुल सही बात है, ये आना चाहिए। यूजिंग डिटरेंट एंड प्यूनिटिव एक्शन वर्सेस सेंसिटिव एंड एम्पैथी टू रिजॉल्व द मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट while instilling speaking on public matter, public sentiment versus time taken in fair justice, ठीक बात है। टैकलिंग द पोस्ट फायरिंग सिचुएशन क्या होगा, कंपनसेशन तो साला उनको चाहिए ही नहीं था ना, वो तो यहाँ अपना सोल्यूशन मांगने आए थे, तो उनको सोल्यूशन करो ना। पीस कमेटी बना दी, लोकल थाना पंचायत, ऐसा क्या हो रहा था, आप उनका सोल्यूशन करो जो प्रॉब्लम थी। मीडियम लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस फैमिलीज मीटिंग फॉर फाइंडिंग ट्रांसपेरेंसी इन ड्यूज पेमेंट, बिजनेस फैमिलीज। अब बिजनेस फैमिलीज क्या होती है, बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस, तो बिजनेस फैमिली मतलब अडानी जी को बुला रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइक जैम कैन बी इफेक्टिव इन ड्यू पेमेंट, हाँ आप बोलिए कि सरकार की तरफ से भी तो है, अगर सरकार की तरफ से क्या हो सकता था और ऊपर से क्या हुआ, उसको आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को आप हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग विजिलेंस कमिटी पोस्ट राइट, राइट हुआ है क्या, इज इट अ राइट, दंगे हो गए। सर राइट टू प्रोटेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ कम्युनिटी के बीच में हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन आर्सनिंग हुआ है सर, प्रोवेश आर्सनिंग और आर्सनिंग तो हुआ, पर इट्स नॉट अ राइट टू रिवाइव द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बंद हो गया है क्या, ऐसा लगा क्या हमें केस स्टडी से, आफ्टर द राइट एंड फार्मिंग। Thus, post-firing situation is very tense. Police being arm of the state is seen by public as the other being in the administration. It is important that confidence-building measures take place like interaction, flag march, humane image of police, flag march. भाई देखो, पोस्ट फायरिंग हो गया है तो उसके बाद सबसे पहले तो शांति चाहिए, क्यों हुआ उसके लिए बड़ी निम्न खेद होना चाहिए, सबसे पहले गलत हो गया वो, खेद होकर जनता के बीच में जाकर उस सारी चीज को होगा ना, देखते हैं, चलिए पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द सिचुएशन हाईलाइट्स हाउ वायलेंस इन प्रोटेस्ट हैज डोमिनो इफेक्ट, देखो कितना बड़ा एक वर्ड है, जैसे पहले आपने भी एक प्रिंसिपल दिया था, डोमिनो इफेक्ट हो गया, यानी वनरेबल सिचुएशन हो जाती है कब, जब मिसकंडक्ट हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और एंगर ऑफ पब्लिक, तीन कीवर्ड डाले। मिसकम्युनिकेशन हुआ, जनता का गुस्सा फूटा, तो एकदम आप रोज अखबार में ये पढ़ते हैं, रोज आप करते हैं, पर आप ला नहीं रहे हैं। स्टेटमेंट टू मीडिया, आई विल देन आई वुड स्टिक टू द ट्रूथ that an investigation is being done by the police and till further investigation no comments can be made। अब इन्होंने क्या लिख दिया, नो कमेंट्स कैन बी मेड। सबसे पहले तो फार्मर जो नहीं रहे हैं उनके लिए आप दुख की बात तो इन्होंने भी वो नहीं बोला जो बेसिकली एथिक्स के एलिमेंट से चाहिए। आई वुड अश्योर देम फुल जस्टिस वुड बी गिवन टू फार्मर्स इफ पुलिस एक्शन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज मॉनेटरी कंपनसेशन। चलो वो जो ऊपर हुआ वो ये कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा। देन द करेक्टनेस ऑफ द वीडियो विल ऑल्सो नीड टू बी चेक्ड। अब वीडियो का जो करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी, वो देखने वाली बात है। स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, डीएम साहब हैं, मिनिस्टर हैं, फार्मर्स हु डाइड, पुलिस पर्सनल हु फायर्ड और प्रोटेस्टर्स, जनता भी तो है। अब लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द फार्मर, ये एथिकल इशू है। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो हमने बताया वो भी मिस इन्फॉर्मेशन है। प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू सॉल्व द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर। रोल ऑफ न्यूज चैनल्स, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, रोल ऑफ न्यूज चैनल्स इन प्रोपोगेटिंग द न्यूज, ये एलिमेंट हम में से कोई नहीं लेके आया। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट भी हमें से कोई नहीं लेके आया। एंड वर्सेस मीन्स, ये उसका डिबेट है, क्या एंड रिजल्ट है, क्या आपने मीन्स लिए। इन्वेस्टिगेशन, कॉज ऑफ डेथ ऑफ फार्मर्स, क्रिएट ए चाइना वॉल एंड इन्वेस्टिगेट द पुलिस ऑफिसर्स, वो तो ठीक है, बस चाइना वॉल ओके। डेटाबेस ऑन विच स्टेटमेंट मेड बाय द मिनिस्टर, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, जो मिनिस्टर साहब ने जो बोला था उसको किस बेसिस पे हुआ। कम्युनिकेशन विद द फार्मर्स टू अंडरस्टैंड द ग्रीवेंसेस। मीडिया, प्रोवाइड अल्टरनेट प्लेस ऑफ प्रोटेस्ट, इन्होंने भी दे दिया यार, वो तो कमाल हो गया। गिव द अपडेट्स ऑन इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, प्रिपेयर फॉर एनी एक्सीजेंसी, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, आगे कुछ होना। टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स हु गॉट वायलेंट इन प्रोटेस्ट। कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ फार्मर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, therefore steps must be taken to assuage any negative emotions
as well as perform the duty to ensure justice to the farmers who lost their lives. I think प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आने चाहिए, वो जो मिसिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बड़ी जो मतलब आपकी कोऑपरेटिव यूनियन भी होगी वहां पर, आपकी फार्मर्स का अलग अलग ग्रुप भी होंगे, उनको लेके आइए और उसके साथ आप जनता को जोड़िए, रादर देन जैसे आरपीएफ और जो आपने हाई हैंडेड चीजें बताई हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं है। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपको डीएम भी अगर आप तो आपको थप्पड़ पड़ सकता है और जनता आपको एकदम सही कर देगी। तो सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, हाई हैंडेडनेस नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। सबसे पहली बात तो डीएम को खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एज ए डिस्ट्रिक्ट के डीएम होने के नाते अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये इतना बड़ा इशू बहुत पहले से चल रहा था और मुझे उसकी खबर भी नहीं थी, तो आई एम समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कॉमन जो मेरी फार्मर कम्युनिटी है उसके ड्यूज इतने टाइम से पूरे नहीं हुए हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट को मैं भी कोऑपरेट कर सकता हूँ। मिनिस्टर साहब ने जब वो बोला तो मुझे भी ध्यान देना चाहिए था, तो प्रोएक्टिव एक्शन भी हो सकता था, वो आपने कुछ भी नहीं लिया। इंटेलिजेंस के केस में ऐसा होता है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ भी है, जब ऑफिसर्स एसपी जो है पहले से गार्ड पे थे और एसपी की रातों रात छुट्टी भी खत्म कर दी गई थी। आपने आपको डीएम बनने का इतना शौक है आप लोगों को कि एसपी वेसपी किसी का कोई रोल ही नहीं लेके आते, बस गलती से बस आपको एक बार डीएम बना दिया जाए। डीएम बनना आपके लिए घोड़ी पे बैठने के जैसा है। अरे एसपी भी होता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी होता है, 100 तरह की चीजें होती हैं, आप में से कोई भी उनका कोई अच्छा रोल नहीं लेके आया। डीएम भी अगर बोल रहे हैं तो डीएम और ज्यादा उसको सेंसिटिविटी से और ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा और हो सकता है। तो ये एलिमेंट हम अगर सीख लें अभी इसी केस स्टडी से, तो शायद 1% आपके चांसेस और हैं कि आपकी सूटेबिलिटी और आपकी मोल्डिंग सिविल सर्विस की तरफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। मन से आपने वो केस स्टडी क्यों नहीं लिखी? सर आज क्योंकि आंसर्स मैंने सुबह लिखे थे तो इसलिए, तो शॉर्ट ऑफ टाइम। आपको लिखना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ यू मस्ट डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वर्क ऑन दीज आइडियाज। और जो सामने आ रहा है वही आपके लिए कल को एक अच्छा, कह सकते हो आप, एक तरीके से मैकेनिज्म है। आप प्लीज उसको रिविजिट कीजिए ताकि आप समझ सकें कि कितनी गलतियां और कितने एरर्स को हमने रिमूव किया और आप उस तरफ बढ़े। करुणा? जी सर। कौन कौन सी ऐसी बेवकूफियां हैं जो हम इन चीजों में हटा सकते हैं? तो सबसे पहले तो चॉइस ऑफ वर्ड, कि हम Choice of- डिस्क्राइब करने के लिए situation को क्या बिल्कुल। वर्ड यूज करें। हाँ, क्या वर्ड से हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने ऑब्जर्वेशन बोला। और सर उसके बाद सेंसिटिविटी, कि हम अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको एक्नॉलेज करें। एंड हम्म, हमें मतलब अगर पर्सनल लेवल पे भी अगर हम होते तो उसको कनेक्ट करना, कि वैसे भी अगर नॉर्मल लाइफ में हम होते तो हमें फर्क पड़ता, तो अरे हम आप उसको दो वहां। मिनट के लिए सीख लेते। आप जो भी जिन्होंने भी केस स्टडी सबमिट की, अगर आप डीएम हो और 4 फार्मर्स की डेथ हुई और आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो और वो 4 फार्मर जो है आपके चाचा मामा ताऊ ही थे, फिर कैसे करते? फिर कैसे हैंडल करते? फिर ऐसे ही हैंडल करते जैसे अभी हैंडल कर रहे थे। बस इतना सोचते तो अपने आप आपका दिमाग ठिकाने आ जाता और आप और अच्छे से लिखते। तो हर जगह एथिक्स के केस स्टडी में यही करो, जो भी चीज है उसमें खुद को इन्वॉल्व करके करो, तो आप देखो गजब आंसर लिखोगे, आप मजा आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब यही है रिस्पॉन्सिबल पोजीशन की बात। पब्लिक सर्विस और पब्लिक सीट का यही आपको इतना तो समझना पड़ेगा। हाँ, और बोलो करुणा। से ये दो चीजें थी जो मुझे हाईलाइट हुई और मेरी लर्निंग्स थी आज के लिए। ओके, सचिन? यस बताइए। सर, ऐसा कोई भी इशू आता है तो हमें उसे सुलझाने की तरफ ही फोकस करते हुए आंसर को सेट करना, ना कि अ, और ज्यादा बात को बढ़ाने वाली दिशा में हमें बढ़ना। और ऊपर से प्रोसीजरल एलिमेंट्स को हम कम रख सकते हैं, उसमें मत जाइए कि मतलब आप तंत्र को मत लेके आइए कि तंत्र और क्या आ सकता है, बल्कि आप एथिक्स के एंगल से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत पहले की थी, एकदम से नहीं हुई, उससे पहले भी दंगे हुए होंगे, उससे पहले भी राइटिंग हो सकती है, फार्मर का लास्ट रिजॉर्ट था वो। तो आप एक एलिमेंट लिखो, ये फार्मर का टॉलरेंस या उनका जो उनको हेल्पलेस फील हुआ लास्ट में सिचुएशन ऐसे
ऐसे वो हुई लास्ट में, मतलब इट गट बस्ट आउट। ये नहीं हुआ कि वो अचानक से ही फार्मर ऐसे हो गए, बस आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन तो ना आप आंसर में दे रहे हो, ना एग्जाम को सॉल्यूशन आंसर में चाहिए, वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। तो एप्टीट्यूड ही आपका अगर सही दिशा में नहीं चलेगा तो यू कांट ब्लेम एनीवन। थैंक यू सचिन। आंचल, यू वांट टू से समथिंग? सर ये कि सेंसिटिविटी के साथ लिखना है और खुद को इन्वॉल्व करना है उसमें। हाँ, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि खुद के लिए भी थोड़ा थिक स्किन हो जाओ, थोड़ा सुनना सीखो, बार बार चीजों को रिपीट मत करवाओ। वो भी सेंसिटिविटी का ही पार्ट है। जब आपको रोज एक बात बार बार बोलनी पड़े तो इससे पता लगता है कि आप अब खुद को लेके कितने इंसेंसिटिव हो। जो आदमी खुद को लेके इंसेंसिटिव होता है दूसरों को लेके भी इंसेंसिटिव ही होगा, चाहे वो सेंसिटिविटी का कितना बड़ा टीका लगा ले। जब आपको खुद एक बात बार बार बतानी पड़ती है तो इसका मतलब है कि आप बहुत इंसेंसिटिव हो। तो ये आइडिया आपके लिए समझने की बहुत जरूरत है सबके लिए। यस प्रवेश। सर प्रोसीजरल एस्पेक्ट को कम करके एथिकल जो सिलेबस के की टर्म्स हैं देखिए वो। भाई, मैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वो आप ले आओ, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जोश में मत आओ। डोंट ट्राई टू जी प्रूव। आपको प्रूव कुछ नहीं करना है। देखो आप अच्छे हो, सब लोग वाकई अच्छे हो, मस्ट हैव ए वंडरफुल लाइफ अहेड। अब आपने आईएफएस वाली सर केस स्टडी, एक चीज। साइंस सर कंडक्ट कुछ जैसे ज्यादा ऐसा नहीं चाहिए। वो सब वो ऑलरेडी ऑलरेडी विजिबल है, एक्शन से विजिबल है वो। तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है नहीं कि जब हम, हाँ बोलिए। सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पुलिस वाली केस स्टडी थी सर, तो इसमें प्रैक्टिकल रहा हूँ सर मैं ऐसी सिचुएशन में, मतलब तो ये सारे एज ए स्टैंडर्ड डीएम, ऑपरेटिंग प्रोसीजर सर मैंने डाले। एज ए डीएम। हाँ सर, जो एज ए डीएम नहीं सर, एज ए मतलब मैंने आपको बताया है जो नॉन में है इन डेजिग्नेशंस पर। तो भी हो, नहीं नहीं, देखिए असली में क्या होता जी है बनने के बाद, बनने के बाद क्या जी होता है और क्या करते हैं उसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं। ये एग्जामिनेशन है ये। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप असली में तो आप केस स्टडी को फाड़ दो, क्योंकि केस स्टडी से तो कुछ निकलेगा ही नहीं। एग्जाम हमें एग्जाम के लिए कर रहे हैं हम। तो एग्जाम का एक अलग चार्म होता है, एग्जाम का अलग एक आइडियलिज्म होता है। एग्जाम ज्यादा इस बात पे नहीं चाहता फोकस करना कि आप सारे टेक्निकल एस्पेक्ट उठा के ले आओ, क्योंकि उनका एग्जाम मानता है कि जिसको नहीं पता तो क्या उसका सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। जिसको धारा नहीं पता, जो धारा नहीं जानी जानी चाहिए, अगर उसको धारा पता है मान लो, तो कौन सा नंबर ज्यादा आ जाएंगे? नंबर ज्यादा नहीं देगा एग्जाम में। हो सकता है मुझे धारा ना पता हो, आपको धारा पता है, लेकिन एग्जाम की नजरों में सब बराबर। ऐसी बातें लिखिए जो अनजान आदमी होते हुए भी आपको सबसे अच्छे से लिखनी चाहिए। वो तो नहीं लिखी जा रही ना। जी सर। तो बस, आपको अगर मान लो गलती से, मान लो आपकी फैमिली में कोई डीएम है और उसने यही सब सिचुएशन फेस की है और आपने वो असली आंसर लिख दिया, दैट इज कंप्लीटली अनफिट, दैट इज अ टेक्निकल आंसर, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर दैट। जी सर। मार्क्स लेने हैं पहले, यहां पर मार्क्स चाहिए हमें। और उसके लिए आपके अंदर जैसे भगवान के मंदिर में जाने की तरह, भक्ति की तरह जैसे होता है कि मैं मंदिर में जाऊं, या फिर मैं जो हूं मम्मा की गोदी लगूं, या मैं पापा मुझे हक करें, या मम्मा मुझे ये करे, या फिर आप सोचो कि कुछ भी सोच सकते हो। बचपन में आप पेड़ से आम तोड़ रहे हो, वैसे तो अब तो हिंदुस्तान में मतलब कल्चर ही खत्म हो रहा है ये, लेकिन फिर भी कुछ भी सोच सकते हो ऐसा। तो वो सब चाहिए यार, रादर देन योर टेक्निकल नॉलेज। तो टेक्निकल नॉलेज लॉ जुडिशरी दे दो, जुडिशरी में और इसमें तो फर्क होना चाहिए ना। यस आशिक। एग्री सर। तो केस स्टडी में थोड़ा और सेंसिटिविटी चाहिए जो था, हम्म लेकिन फिर और इसको और लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल सैड दैट 4 farmers हैव डाइड, ऐसे के स्टार्ट करते, फिर आगे फिर जोड़ते और बाकी सब हम्म। को करेक्ट करते। एंड व्हाट एल्स यू कैन ऐड? और ऐड नहीं करना सर, उसमें सब्ट्रैक्ट ही करना है कुछ केस स्टडी में जो प्रोसीजरल पार्ट है। What else you can add? सो ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सर, जो प्रोसीजरल पार्ट है। Okay. So we will do another exercise also. मतलब we will start a separate exercise side by side as a model kind of exercise, which I can feel is the right time to start. We will also do that. I'll speak with you, Ashik. And anything else you want to share? Any one of you? नो सर।
Thank you very much. And it was a wonderful interacting with all of you. Like always, I've been learning a lot of things, and thanks for your participation.